Dear students, in the previous video we have already discussed about the concept of cost, है ना। तो we know what is cost now, हमें पता है कि cost क्या है ना। We also discuss about the implicit cost and explicit cost, है ना। तो implicit cost और explicit cost के बारे में भी we know about it, है ना। We also discuss about the short run cost of production, that is fixed and variable cost, है ना। We also study about the behavior of fixed cost, variable cost and total cost, है ना। So now we know that what is fixed cost, variable cost and total cost. We also know what is the formula of these cost and how to calculate these cost, and what is the table of these cost and the curve of these costs, है ना। So we have discussed all these things. In this video I am going to tell you about the average cost and the marginal cost. Now let's just study about the average cost and what is the shape of average cost. So average cost is also known as AC in short form. So what is average cost now? Cost per unit of output is called average cost, ठीक है। So total cost upon quantity of output, that is equals to average cost. जब हम total cost को divide करते हैं quantity of output से, so we got the एवरेज कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट का ये फॉर्मूला हुआ। अब देखिए इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट ऑफ कॉमोडिटी इज़ 48। अब जैसे कि मान के चलिए हमने 6 यूनिट कॉमोडिटी के प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो उन 6 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 48 रुपीज़ का कंजम्पशन करना पड़ा था। तो 48 हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, एंड 6 यूनिट is the output of quantity. So 48 upon 6 is equals to 8 rupees. So the 8 rupees is cost per unit, which is also called average cost. So what is the definition of average cost now? Cost per unit of output, ठीक है। तो आप ये definition यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, cost per unit of output produced, that is the average cost, and it is also called the cost of production sometime. Now here on the screen you can see the example of total cost and average cost. So if you have the total cost like this 10, 20, 28, 34, 38 and 48 like this, and 42 also, and you have quantity like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, it means that for producing the 0 unit the total cost is 10 rupees. For producing the 1 unit the total cost will be 20 rupees. For producing the 3 unit the total cost is 34 rupees, and for producing the 4 unit the total cost is 38 rupees, and for producing the 5 unit we have 42 rupees, and for 6 unit of output we need a total cost of 48 rupees. So now here if we want to know about the total cost, the formula of average cost is total cost upon output. So when we produce 0 unit the average cost will be infinity, है ना। When we produce 1 unit, what is the average cost? Average cost is 20 upon 1. What is 20? That is total cost, and 1 is the output. So 20 upon 1, that is TC upon output. When we produce 2 unit the average cost will be 14. How? When total cost, that is 28 divided by 2 unit, we got the average cost 14 rupees, है ना। So here like this you can calculate the average by dividing total cost by आउटपुट, है ना। टोटल कॉस्ट को जब हम आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाती है, हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाती है ना। देखिए जब 4 यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था तो टोटल कॉस्ट कितनी थी 38, तो हमने 38 को जब 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो इसी टाइप से आप सभी प्रकार से एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ एवरेज कॉस्ट. It means the component of average cost. First component is average fixed cost, and the second component is average variable cost. Like this, when total fixed cost and plus total variable cost is always equals to total cost. Like this, when average fixed cost plus average variable cost always equals to average cost, ठीक है।
तो इसी प्रकार से ये कंपोनेंट हैं किसके, एवरेज कॉस्ट के। जैसे टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट थे टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसी प्रकार से एवरेज कॉस्ट के दो कंपोनेंट क्या हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड करके क्या बना सकते हैं, एवरेज कॉस्ट। ओके, सो हमने यहाँ पर पहले टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट बनाया था। ओके, नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट नाउ। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज फिक्स कॉस्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। ये सबको पता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट का एक कंपोनेंट है ना। So now what is the definition of average fixed cost? Average fixed cost means fixed cost per unit of output. Fixed cost per unit of output, that is average fixed cost. So now what is the formula of average fixed cost? Average fixed cost का क्या formula है? When total fixed cost divided by the quantity of output, है ना, we get the एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें क्या मिल जाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल जाता है। तो जिस प्रकार से टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट था, एवरेज कॉस्ट बना, इसी प्रकार से व्हेन एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट हो जाता है तो क्या बन जाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट बन जाता है। फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो नाउ वी नो दैट व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, है ना। Now let's discuss how to calculate the average fixed cost. तो अब एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट व्हेन टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वी गॉट द एवरेज फिक्स कॉस्ट। So now here on the screen you can see this table. First column is output, second column is of total fixed cost and the third column is average fixed cost, है ना। when second column is divided by the first column, it means that when total fixed cost is divided by unit of output, we got the third column, that is average fixed cost. So now here on the screen you can see that total fixed cost is remains same at all level of output, that is why it is of course फिक्स कॉस्ट, है ना। फिक्स कॉस्ट ही इसीलिए है क्योंकि ये हर आउटपुट के हर लेवल पे कैसी है, सेम है, ठीक है। हमने 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट 10 थी, हमने 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट 10 थी, हमने 3 यूनिट किया फिर भी 10 थी, 4 यूनिट पर 10 थी। तो हम कितने भी यूनिट का प्रोडक्शन करें, है ना, फिक्स कॉस्ट हमेशा हमारी सेम रहती है, ठीक है। ये तो बात थी टोटल फिक्स कॉस्ट की। अब जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं यूनिट ऑफ आउटपुट पर यानी क्वांटिटी से, देन वी गॉट द एवरेज फिक्स कॉस्ट हियर। सो व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाय 1 वी गॉट 10 एवरेज फिक्स कॉस्ट, व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाय 2 we got 5, that is the average fixed cost. When 10 is divided by 3 we got 3.3, that is the average fixed cost. When 10 is divided by 4 we got 2.5. So here you can calculate like this the average fixed cost. So now we know what is average fixed cost, what is the formula of average fixed cost, what is the definition of average fixed cost, and how to calculate the average fixed cost. Now I am going to tell you how to draw एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वी नीड अ टेबल, जो हमने अभी पहले स्क्रीन पर भी देखा था कि जो हमारे पास टेबल था जिसमें आउटपुट गिवन थे, ठीक है। आउटपुट के बाद हमारे पास फिक्स कॉस्ट गिवन थी और उसके बाद हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाली थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा वी ड्रॉ दिस एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। So let's start how to draw this curve. First one, we need to draw the x-axis. On the x-axis we represent the output. Here you can see on the screen 1 2 3 4 5 6 7 8, that is the output. On the y-axis we need to represent the average fixed cost, that is 1 2 3 4 5. On the vertical you can see this. Now अब हमें क्या करना है कि प्लॉट करना है एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व। तो जो टेबल अभी हमने देखा था उसी टेबल के बेस पर अब हम यहाँ पर इसको प्लॉट करेंगे। जब आउटपुट था हमारा कितना 1 यूनिट का तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी 10 यूनिट की। जब आउटपुट था हमारा 2 यूनिट का तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी थी 5 यूनिट की। जब आउटपुट था हमारा 3 यूनिट का तो एवरेज फिक्स कॉस्ट थी हमारी 3.3 यूनिट की। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर कर्व क्या कहते हैं पॉइंट प्लॉट करेंगे और पॉइंट प्लॉट करने के बाद उन सभी पॉइंट को हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। तो वी हैव दिस कर्व ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ लेट मी टेल यू दिस, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज एट द
एट व्हेन द आउटपुट इंक्रीज। देखिए आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम था, लेकिन जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, 1 पे देखिए सबसे ऊपर था, 2 पे थोड़ा नीचे आया, 3 पे देखिए फिर नीचे आया। तो इस हिसाब से जैसे जैसे हमने आउटपुट बढ़ता गया तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी क्या होता गया, डिक्रीज होता गया। दैट इज़ वाई दिस कर्व इज स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो क्या है, स्लोप होता है डाउनवर्ड। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और दो पहली हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी एवरेज फिक्स कॉस्ट की, वो क्या हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो डाउनवर्ड जाता है। वाई इट इज़ डाउनवर्ड, बिकॉज व्हेन आउटपुट इंक्रीज एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑल्सो गेट डिक्रीज, है ना। आउटपुट इंक्रीज होता है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई इट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द table of average fixed cost. So now what is the formula of average fixed cost when total fixed cost divided by output? So when average fixed cost is again when multiplied by output we got a total fixed cost. It means that total fixed cost is remain same at all the point of output. तो जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर किससे, आउटपुट से, तो हमें क्या मिलता है, टोटल फिक्स कॉस्ट मिलती है जो हमेशा सेम रहती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी थी 10, ठीक है, और टोटल आउटपुट कितना था 1, तो 10 इंटू 1 10 आ गया। फिर देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है 5, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आउटपुट 2 था तो फिर कितना आ गया 10। फिर थर्ड वाले में 3.3 है एवरेज फिक्स कॉस्ट, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आई 3। तो यानी कि जब भी हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आएगा, और टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा रहेगा, इट विल रिमेन सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। दैट इज़ वाई AFC curve is a rectangular hyperbola. Okay, it is a hyperbola. It is hyperbola because if we take any point that is AFC, अगर हम AFC का कोई सा भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी आउटपुट से हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो टोटल कॉस्ट मिलती है वो क्या मिलती है, सेम मिलती है जब हम सभी AFC को आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल फिक्स कॉस्ट मिलती है वो सभी यूनिट पे सेम रहती है, इसीलिए AFC कर्व को क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, our next topic is average variable cost. So what is average variable cost? When वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जब हम क्या करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट को निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स दैट व्हेन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलता है ना। और इसकी डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। नाउ दैट इज the meaning of average variable cost. Here on the screen you can see this average variable cost table, है ना। So when total variable cost is divided by output we got average variable cost. When 10 divided by 1 we got 10, 10 is a average variable cost. When 18, that is total variable cost divided by 2 unit of output we got 9, that is average variable cost. When 24 divided by 3 we got 8, that is the average variable cost. When 28, that is the total variable cost. When 28 divided by 4 we got 7, that is the average variable cost. Like this, when total variable cost divided by that output we got the average variable cost, as you can see on your screens now. Now let me tell you the behavior of average variable cost. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आप देखिए मैं आपको बिहेवियर बताता हूँ। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द टेबल है ना विच शोज़ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप ध्यान से देखिए, यूनिट 1 पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 10, यूनिट 2 पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 9। तो इसी टाइप से आप देखते जाएंगे तो 10, 9, 8, 7, 6.4 और 6.3, यानी कि 6 यूनिट तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, उसके बाद 7th यूनिट और 8th यूनिट तक आप देख सकते हैं 6.7 और 7.7, यानी कि 6th यूनिट के बाद जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल प्रपोर्शंस के बारे में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के बारे में, जब हम फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को एक साथ यूज़ करते हैं तो होता क्या है प्रोडक्शन के दौरान कि सबसे पहले जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब डिक्रीज़ होती है तो कारण क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ कारण होता है उसका इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और जब वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। सो पहला फेज़ होता है ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, दूसरा फेज़ होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और इसी प्रकार से अगर प्रोडक्शन बढ़ता जाए, यानी कि 8 के बाद 6, 7, 8 यूनिट तक प्रोडक्शन हुआ, अगर प्रोडक्शन इसके आगे भी बढ़ता है यानी कि 9, 10, 11, 12 यूनिट तक, तो डेफिनेटली एक वे आएगा, एक स्टेप ऐसा आएगा यहाँ पर कि जब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़ीरो हो जाएगी और उसके बाद इवन नेगेटिव भी हो जाएगी, है ना। तो यही हमने सीखा है किससे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से, है ना, कि पहले जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होती है, फिर इंक्रीज़ होती है, फाइनली वो ज़ीरो हो जाती है और नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो जब वो डिक्रीज़ होती है तो क्या कारण होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। जब वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होती है एक पॉइंट से, जैसे कि यहाँ पर 6 यूनिट के बाद इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहे थे वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका क्या कारण था, इसका कारण था डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और उसके बाद जब वो ज़ीरो के बाद नेगेटिव हो जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिटर्न। ओके, सो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में। तो नाउ वी नो व्हाट इज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, the formula of average variable cost, the table of average variable cost, the behavior of average variable cost. Now let me tell you the curve of average variable cost. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक टेबल देखा था, दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ. So with the help of this table we can just draw this average variable cost curve. सो इसको अगर हमें प्लॉट करना है, इसको ड्रॉ करना है इस कर्व को, तो पहले हम बनाते हैं एक्स एक्सिस. ऑन द एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट द आउटपुट, ऑन द वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो देखिए हमने आउटपुट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है. तो यहाँ पे जब आउटपुट था हमारा 1 यूनिट का, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 10 यूनिट की. तो हम इसको पहले एक पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर. फिर उसके बाद 2 यूनिट पे 9 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर 3 यूनिट पर 8 वेरिएबल कॉस्ट, फिर 4 यूनिट पर 7 वेरिएबल कॉस्ट. इसी टाइप से हम पूरा जो कर्व है उसको प्लॉट कर लेंगे धीरे धीरे करके एवरेज वेरिएबल कर्व को. ठीक है, तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे एवरेज वेरिएबल कर्व को, तो एट द एंड वी आर एबल टू सी दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज़ अ यू शेप्ड कर्व. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो देखिए यू शेप का कर्व बन रहा है. Why it is a U-shaped curve? Because first average variable cost start diminishing. ये पहले कम होना स्टार्ट होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है ना. आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर अ स्टेज, है ना, इट स्टार्ट इंक्रीजिंग. एक स्टेज पे पहुंचने के बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट होती है. तो पहले ये डिक्रीज होती है, फिर ये इंक्रीज होना स्टार्ट होती है. तो इसीलिए इसका जो कर्व है ना, वो कर्व कैसा बनता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो यू शेप कर्व बनता है ना. तो इसका डिक्रीज़ होने का जो कारण है वो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, और इसके इंक्रीज़ होने का जो रीज़न है वो है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर. ओके, सो दैट इज़ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. सो नाउ वी नो द कर्व ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व. द कर्व ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ अ यू शेप्ड कर्व, एंड फॉर द AC कर्व इज़ अ स्लाइट यू शेप कर्व, है ना. तो जो C का कर्व, AC का कर्व होता है वो भी स्लाइट यू शेप कर्व होता है. सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थ्री कर्व. अगर हम तीनों कर्व को अगर ड्रॉ करते हैं एक सेम ग्राफ पेपर पर,
तो इनका क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए अब हम उसी रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन AC, AFC एंड AVC. सो एज आई ऑलरेडी told you that in the beginning of this video is that the sum of average fixed cost and average variable cost is equals to the average cost. To understand why AFC प्लस AVC इज इक्वल्स टू AC, तो इसको समझने के लिए कर्व को देखिए, हमने एक ग्राफ पेपर पर तीनों यहाँ पर कर्व को ड्रॉ किया है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो स्काई ब्लू कलर का देख सकते हैं आप, एवरेज फिक्स वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो ग्रीन कलर का है, एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है देखिए पर्पल कलर का है। तो तीनों कर्व आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इन कर्व को हमें वर्टिकली क्या है, इनको वर्टिकली समीशन प्रूव करना है। तो देखिए वर्टिकल समीशन ने देखा इनका क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ AC नाउ, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ AC। AC की हाइट क्या है, AC की हाइट है SL, AC की हाइट देखिए यहाँ पर क्या है SL, है ना। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ AVC, AVC की हाइट यहाँ पर क्या है TL है ना। और AFC की हाइट यहाँ पर क्या है KL है, ठीक है। सो वी नो द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी कि AC इज इक्वल्स टू AVC प्लस AFC, ठीक है। तो AC कितना था SL था, AVC की वैल्यू क्या है TL और AFC की वैल्यू क्या है KL है। तो यानी कि जब हम KL और TL को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा SL बन जाएगा। तो ये जो पर्पल कलर की लाइन है जिससे मैंने TL और KL निकाले हैं, तो TL और KL को अगर मैं ऐड करूँगा ग्राफ पर तो वो इक्वल्स टू वो किसके इक्वल बैठेगी, वो इक्वल बैठेगी किसके SL के। तो इससे ये साबित होता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का वेरिएबल जो उसका वर्टिकल समेशन होता है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि वी कैन क्लियरली से दैट AC कर्व यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व इज अ वर्टिकल समेशन ऑफ AFC एंड एवरेज वेरिएबल कर्व। ओके, लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक। नाउ द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज marginal cost. Now we know about the total cost, that is the total variable cost and total fixed cost. Now we also know about the average cost, that is average fixed cost and average variable cost. Now let us see what is marginal cost. Marginal cost क्या है, देखिए marginal cost जो है जब टोटल कॉस्ट में चेंज होता है। देखिए ऐसा है कि जब हम देखते हैं टोटल कॉस्ट का टेबल तो क्या है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता जाता है, 1 यूनिट फिर 2 यूनिट फिर 3 यूनिट 4 यूनिट। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाती हैं टोटल कॉस्ट भी बढ़ता जाता है। तो एक अतिरिक्त यूनिट बढ़ने के साथ जितना टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ होता है तो उस एडिशनल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जैसे 4 यूनिट से 5 यूनिट तक पे आए तो हमने 4 यूनिट जब प्रोड्यूस की थी तो हमारा जो टोटल कॉस्ट था वो 20 था, और जैसे ही हमने 50 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो 50 यूनिट के साथ जो प्रोडक्शन था जो टोटल कॉस्ट थी वो 20 से 25 की हो गई। तो यहाँ पर 1 यूनिट इंक्रीज़ होने की वजह से जो कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ हुई है, यानी कि 1 यूनिट इंक्रीज़ होने 4 से 5 यूनिट होने की वजह से जो हमारी कॉस्ट 5 यूनिट की इंक्रीज़ हुई है, 5 रुपीज़ की जो कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है उसको हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, मार्जिनल कॉस्ट इज़ द change in total cost when an additional unit of output is produced, है ना। तो जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी वजह से जो एडिशनल टोटल कॉस्ट आती है, जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है वही क्या कहलाता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट, है ना। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। 2 फॉर्मूले हैं देख सकते हैं आप इसके। पहला फॉर्मूला है MCN इक्वल्स टू TCN माइनस TCN-1। दूसरा फॉर्मूला है इसका MC इज इक्वल्स टू चेंज इन TC अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। सो नाउ लेट जस्ट सी हाउ टू यूज these formulas and what is actually the meaning of marginal cost and what is the shape of marginal cost. So as you can see on the screen, the table, we already know that when the total fixed cost and total variable cost add together they make the total cost. Okay, so the first
कॉलम वी हैव इन द टेबल इज ऑफ द आउटपुट, पहला जो कॉलम है वो आउटपुट का है, सेकंड कॉलम इज ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, टोटल फिक्स कॉस्ट का सेकंड कॉलम है, एंड द थर्ड कॉलम्स बिलोंग्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा कॉलम किसका है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। और जब हम सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड करते हैं, यानी कि जब टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, हमारा टोटल कॉस्ट बनता है। जैसे कि 10 + 0 10, 10 + 10 20, 10 + 18 28, 10 + 24 34, 10 + 28 38, 10 + 32 42, लाइक दिस, है ना। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाता है। देखिए यहाँ पर जब 0 यूनिट का मैंने प्रोडक्शन किया था तो टोटल कॉस्ट कितना था, 10 रुपीज़ का। जब मैंने एक और यूनिट का प्रोडक्शन किया, यानी कि मैंने 1 यूनिट का जब प्रोडक्शन किया तो देखिए टोटल कॉस्ट कितना आ गया मेरा, 20। फिर मैंने एक और यूनिट का प्रोडक्शन किया, यानी कि 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया मेरा, 28। अब देखिए जब फर्स्ट यूनिट से मैं सेकेंड यूनिट पर आया तो मेरा एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन मैंने इंक्रीज़ किया, उसकी वजह से मेरी कितनी यूनिट बढ़ गई, 20 से 28 यूनिट हो गई। तो देखिए 8 क्या हो गया मेरा, मार्जिनल कॉस्ट। फिर देखिए मैं दूसरी यूनिट से फिर मैंने तीसरी यूनिट और बनाई, तो मैंने जब 2 यूनिट के बाद एक तीसरी यूनिट और एडिशनल बनाई तो उसकी वजह से मेरी टोटल कॉस्ट 28 से कितनी हो गई, 34 की हो गई। तो फिर से ये इंक्रीज़ हो गई, 34 - 20 यानी 6 यूनिट से फिर इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, फिर मैंने 3 यूनिट ऑफ आउटपुट से मैंने 4 यूनिट आउटपुट किया, मतलब अभी तक मैं 3 यूनिट बनाता था, मैंने 4 यूनिट बनाए। तो मैंने 1 यूनिट जैसे इंक्रीज़ किया तो जो मेरा टोटल कॉस्ट था वो 34 से बढ़कर 38 हो गया, यानी कि देखिए फिर वह जो 4 रुपीज़ थे फिर इंक्रीज़ होगा। तो जो 4 रुपीज़ फिर इंक्रीज़ हुआ ये फिर मार्जिनल कॉस्ट हुए। फिर मैंने 5 से 6 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो मेरा खर्चा 42 से बढ़ के 48 का हो गया। तो 42 से 48 का बढ़ा, यानी कि 6 रुपीज़ मेरे फिर इंक्रीज़ हो गए। तो ये क्या है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है, हर बार जब प्रोडक्शन 1 यूनिट से इंक्रीज़ होगा तो 1 यूनिट से इंक्रीज़ होने पर जितनी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि जितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी मार्जिनल कॉस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू ड्रॉ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। देखिए मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हमें कैसे ड्रॉ करना है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द टेबल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का टेबल आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका टेबल तो टेबल है हमारा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, स्टार्ट करते हैं, है ना। ऑन द ग्राफ पेपर वी ड्रॉ 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट आउटपुट एंड y axis represent marginal cost and x axis रिप्रेजेंट आउटपुट। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट को, और जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करेगा मार्जिनल कॉस्ट को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंक्रीज़ हो रहे हैं, और देखिए मार्जिनल कॉस्ट 10 8 6 4 4 6 8 16। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, आउटपुट और मार्जिनल कॉस्ट को क्या कहते हैं, प्लॉट करते हैं हम इस कर्व पर। तो जब हम प्लॉट करेंगे इस कर्व पर तो उसके बाद हम पॉइंट बनाने के बाद जब हम ज्वाइन करेंगे उन पॉइंट को तो हमें इस टाइप का एक कर्व बनेगा जो आप देख सकते हैं। जो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो देखिए यू शेप का कर्व है। देखिए इसका कर्व जो है वो देखिए यू शेप का है। अब इसका क्या रीज़न है कि क्यों यू शेप का कर्व है। देखिए पहला रीज़न ये है कि जब मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज़ होती है स्टार्टिंग में, पहले 10 से 8 8 से 6 6 से 4, है ना, तो यानी कि ये आपकी 4 यूनिट तक डिक्रीज़ हो रही है। फर्स्ट यूनिट से 4 यूनिट तक क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद 6 यूनिट से आप देख सकते हैं 8 यूनिट तक, यानी कि 4 से 6 होती है, 6 से 8 और 8 से 16 होती है। तो इस हिसाब से एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद, अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज़ होती है, फिर मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या बनाता है, यू शेप्ड का कर्व बनाता है। ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट इज अ यू शेप कर्व, है ना, विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, है ना। व्हेन एमसी इज़ फॉलिंग, सबसे पहले एमसी क्या है, डिक्रीज होता है ना। उसकी वजह, उसकी जो रीज़न है वो क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। उसके बाद जो एमसी है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। एंड व्हाट इज़ द रीज़न वाई एमसी इज इंक्रीज, ड्यू टू द डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर।
सो यहाँ पर एम सी क्या है, पहले डिक्रीज है फिर इंक्रीज है ना। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इसके इंक्रीज होने का और डिक्रीज होने का जो रीज़न है उसको एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट इट डिक्रीज, दैन इट रीच टू अ मिनिमम पॉइंट, दैन इट इज स्टार्ट increase।